Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. Welcome to the weekly wrap. It's been a high-octane week for the virtual digital currencies, with prices soaring higher as markets look to preempt central bank decisions on rate hikes, a tool actively used to wage war against runaway inflation. Cryptocurrency markets consolidated in the beginning of the week ahead of the FOMC meet scheduled on Wednesday. After reaching its 5-month peak, Bitcoin momentarily moved above $24,000 level only to retrace lower in following sessions. Traders widely expect a 25 basis point increase but will await commentary for clues into how much further the Fed intends to hike or when it plans to cut rates. According to crypto analytics firm Sentiment, Dogecoin witnessed a spike in on-chain activity. The data revealed that whales carried out 523 Doge transactions valued above $100,000, the highest since November 27. The Federal Open Market Committee announced a 25 basis point hike in interest rates. However, as per the market participants expected these numbers beforehand, the crypto market started soaring minutes after the actual Fed announcement. The Polygon market have witnessed significant price gains due to its new partnership with Polygon, ZK EVM and Genso, which boosted investor confidence and resulted in an increased market participation. Bitcoin was trading at $23,517, down 1.2%. Ethereum, the second largest crypto, was down by 1.6%, trading at $1,641. तो संदीप जी, यहाँ फेडरल रिजर्व का रेट डिसीजन आने वाला है और अब ये माना जा रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट इसका देखने के लिए मिल सकता है और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो एनालिस्ट हैं दे आर बिलीविंग कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ यहाँ हो सकता है। और साथ साथ देखें तो इस हफ्ते अगर हमने देखा डोज कॉइन तो उसके भी प्राइस में हमें वृद्धि होती दिखाई दी। इसमें एक इनपुट मैं आपको दे सकता हूँ। एक पॉलीगॉन मार्केट जो है जेंसो के साथ पार्टनरशिप के बाद उसमें भी बहुत सारा हाइक वहाँ पे देखने को मिला हमें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने 2023 में अपने रिस्ट्रिक्टिव क्रिप्टो टैक्स रूल्स में कोई बदलाव नहीं किया है। वास्तव में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश के बजट का अनावरण करते वक्त क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ब्लॉकचेन या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का उल्लेख नहीं किया, जो लेटेस्ट टैक्स रूल्स को इंडिकेट करता है। पिछले साल जो 30% टैक्स और 1% टीडीएस की जो घोषणा की गई थी, उसके बाद 9 महीनों में इंडियंस लोकल से इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग वॉल्यूम में $3.8 बिलियन से अधिक चले गए और क्रिप्टो में रुचि कम होती दिखाई दी। तो ये जो बजट 2023 जो हुआ वो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ निराशाजनक भी साबित हुआ। बिल्कुल, सबको ये होप था कि इसमें क्रिप्टो टैक्स के ऊपर, डिजिटल एसेट्स के ऊपर कुछ बात होगी और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बात होगी, सीबीडीसीज के ऊपर कुछ बात होगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन्वेस्टर्स में थोड़ा निराशाजनक कुछ दिखाई दी। बिल्कुल, सभी एक क्लैरिटी चाह रहे थे, लेकिन किसी को भी एक क्लैरिटी नहीं मिल पाई क्योंकि क्रिप्टो का या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कोई जिक्र ही नहीं था बजट में। Moving on, Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2023 in Parliament Wednesday. While the Finance Minister did not mention crypto in her budget speech, the Finance Bill reportedly includes an amendment to the Income Tax Act that applies to crypto TDS. According to the amendment, the penalty for failure to deduct or pay crypto TDS includes an amount equal to the unpaid TDS that will be imposed by a joint commissioner, noting that for late payments of 15% interest per annum will be imposed. Additionally, failure to pay TDS on crypto transactions can land one in jail for up to 7 years.
तो देखिए संदीप जी, जैसा कि हमने बात की कि कोई भी क्रिप्टो का जिक्र ही नहीं हुआ या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कोई जिक्र ही नहीं था उनके बजट में, और इसके साथ साथ अगर कोई TDS पे नहीं करता है या उसको पे करने में लेट हो जाता है तो क्रिप्टो TDS के लिए उन्हें यहाँ पे 15% पर एनम जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना होगा। इसके साथ ही अगर TDS कोई अगर नहीं पे करेगा तो उन्हें 7 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। एक बहुत बड़ा इसमें अपडेट है जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने गुरुवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में उथल-पुथल के बीच भारत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी FSB के साथ काम कर रहा है ताकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वर्चुअल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक रोड मैप पर सहमति बन सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कई मौकों पर कहा था कि भारत एडवांस इकोनॉमीज में होने वाली घटनाओं के फैलाव से निपटने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ साथ अपने G20 प्रेसिडेंसी के तहत टेरर फंडिंग की जांच के लिए क्रिप्टो एसेट्स के ग्लोबल रेगुलेशन पर भी जोर देगा। तो G20 प्रेसिडेंसी की जो बात चल रही है, अभी सितंबर में जो इसके बारे में जो मीटिंग होने वाली है उस पर सभी इन्वेस्टर्स, सभी एक्सचेंजेस, सारी दुनिया का ध्यान इस पे लगा हुआ है कि यहाँ से कुछ अच्छे इनपुट्स मिले। पर निर्मला सीतारमन जो है वो अभी भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग उस पर वो ज़्यादा फोकस है, जो शायद ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो G20 के दौरान जो मीटिंग के दौरान ये सब क्लियर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बजट से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो जिक्र होगा, या तो टैक्स कम हो या ज़्यादा हो या कोई क्लैरिटी उन्हें मिले, लेकिन अब ये क्लैरिटी वो देखना चाहेंगे G20 की प्रेसिडेंसी जो है, इनकी जो मीटिंग होने वाली है सितंबर में जैसे आपने बताया। तो और अपने बजट की स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये भी कहा है कि जो ये G20 है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है इंडिया को। Moving on, in the early hours of January 25, Binance sent WazirX a letter requiring the Indian exchange to meet 2 demands by the end of this month or risk Binance terminating its service agreement with WazirX by February 3. First, Binance told WazirX to publish a pre-written clarificatory statement retracting WazirX co-founder Nishchal Shetty's previous statements that Binance owned WazirX. It also required WazirX to erase all mentions of Binance in terms of service. On Friday, Zanmai, WazirX's official name, responded to Binance's demands in a letter. It fought back, claiming that the demand letter was unethical and attempted to use media pressure and threats to force Zanmai into issuing false and misleading statements as clarifications. In the letter to Binance's legal team and CEO, Shetty refused to retract his prior statements that Binance had purchased the Indian exchange. Shetty also said in the letter that Binance had profited handsomely from its control of the exchange. If WazirX does not comply with Binance's request, Binance's demand letter made clear that this will effectively sever their relationship. तो संदीप जी, यहाँ WazirX और बाइनांस के बीच जो स्पैट हुआ वो फिर से एक बार पनपता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाइनांस ने सीधा सीधा लेटर WazirX को दिया है कि आप या तो ये मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जैसा WazirX ने पहले कहा था कि हमें ओन करता था बाइनांस, या तो बाइनांस ने अब ये कहा है कि WazirX को कि ये हमारी 2 कंडीशंस है, ये हमारी 2 डिमांड्स हैं कि एक तो आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि हम आपको आपकी एक्सचेंज को ओन नहीं करते थे, और दूसरा ये कि आप ये भी क्लियर कीजिए कि आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस में हमारी एक्सचेंज यानी कि बाइनांस का नाम कहीं नहीं है। लेकिन WazirX के जो को फाउंडर है निश्चल शेट्टी, उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है और आप मीडिया प्रेशर हमें दे रहे हैं और बिल्कुल अनएथिकल है, मैं अपनी कोई भी स्टेटमेंट वापस नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, बाइनांस और एफटीएक्स का जो कोलैप्स हुआ था हाल फिलहाल में जो हुआ था, उसके बाद बाइनांस कहीं पर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया मार्केट में जी। तो अभी वो इंडियन एक्सचेंज जो है WazirX, उस पर भी वो प्रेशर बना रहा है ताकि उसको हासिल कर सके। और पूरी तरह से क्रश हो जाएगी अगर ये उसका सक्सेस हुआ तो थोड़ा इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा मार्केट पर। और WazirX ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बाइनांस ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है WazirX से, और अब उन्हें ये कह रहा है कि हमारा नाम बिल्कुल साफ कर दे एक तरह से। देखते हैं आगे क्या अपडेट्स होंगी। कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक डिफॉल्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म एल्मेडा रिसर्च द्वारा बैंक करप्ट वॉयजर डिजिटल को लोन रिपेमेंट्स किए गए $446 मिलियन निकालने के प्रयास को क्रिएटर्स की कमिटी और वॉयजर दोनों ने ही खारिज कर दिया है।
वॉयजर क्रिएटर्स ने तर्क दिया कि एल्मेडा के क्लेम को या तो अन्य सभी क्रिएटर्स के क्लेम के समान रूप से सबऑर्डिनेट किया जाना चाहिए या इक्विटी के रूप में रिकैरेक्टराइज किया जाना चाहिए। क्रिएटर्स ने कहा कि एल्मेडा के इनइक्विटेबल और फ्रॉडलेंट कंडक्ट की कीमत वॉयजर और क्रिएटर्स को $114 मिलियन से $122 मिलियन के बीच चुकानी पड़ी। क्रिएटर्स ने पूर्व मामले के कानून का हवाला देते हुए जो कहता है कि कोर्ट क्रिएटर्स के प्रायोरिटीज को रीअरेंज कर सकती है और एक उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए गलत व्यक्ति के क्लेम के सभी या एक हिस्से को इन्फीरियर स्टेटस में रख सकती है। तो एल्मेडा रिसर्च का हिस्ट्री जो है वो सबको ही पता है। फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए वो उसको मास्टर कहा जाता है। ऐसे उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, क्रिएटर्स को दिया और वॉयजर को दिया। उसके बाद ये जो फॉल्स स्टेटमेंट का जो दौर रहा उस दौरान उन्होंने ये कहा कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो उनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए उन्होंने वोट भी किया। तो आखिरकार ये सब रिवील हो गया और रिवील होने के बाद उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वॉयजर और एलामीडा दोनों को ये बहुत भारी भी पड़ा क्योंकि लगभग $122 मिलियन का यहाँ पे उन्हें लॉस हुआ। Moving on, according to a 30th January filing with the US Securities and Exchange Commission, Tesla lost more than $140 million betting on Bitcoin last year. In 2022, the electric vehicle manufacturer took a $204 million impairment charge while earning $64 million from Bitcoin conversion. In the year ended December 31st, 2022, we recorded $204 million of impairment losses resulting from changes to the carrying value of our Bitcoin and gains of $64 million on certain conversions of Bitcoin into fiat currency by us, Tesla said in the filing. The SEC filing comes less than a week after Tesla's quarterly earnings report, which included no Bitcoin transactions but saw the value of its holdings fall, resulting in a $43 million loss for the last 4 months of 2022. तो संदीप जी, यहाँ टेस्ला ने जो बिटकॉइन कन्वर्जन किया फियाट करेंसी में, वहाँ इन्हें इम्पेयरमेंट लॉसेस $200 मिलियन से ज़्यादा के हुए, लेकिन प्रॉफिट भी कुछ $64 मिलियन के अराउंड इन्होंने कमाया है। इसके साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट में जो हम लोगों ने देखा, बहुत सारी कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ा, जो कि टेस्ला को भी बेयर करना पड़ रहा है, जो कि टेस्ला जिसे सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो करना पड़ा कि पर इस दौरान कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। और अगर साथ में बात करें टेस्ला की होल्डिंग वैल्यू ये डाउन हो गई जी, बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। उम्मीद से बेहतर क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद मेटा शेयरों में बुधवार के बाद के घंटों के ट्रेडिंग में 18% से ज्यादा की वृद्धि हुई, लेकिन मेटा में राइजिंग मेटावर्स टाइड्स अभी भी टेक जायंट के उलझे हुए मेटावर्स डिवीजन को नहीं उठा सके। कंपनी के मेटावर्स फोकस रियलिटी लैब्स को 2022 की फिस्कल फाइनेंशियल क्वार्टर में $4.28 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। मेटा ने घोषणा की कि स्ट्रगलिंग डिपार्टमेंट के लिए एक नया लो मार्केट किया गया, जिसे बार बार कंपनी के भविष्य के रूप में रखा गया है। बुधवार की घोषणा ने मेटावर्स डिवीजन के टोटल 2022 लॉसेस को $13.72 बिलियन तक पहुंचा दिया है। तो रियलिटी लैब्स इन्होंने मेटावर्स में जो मेटावर्स फोकस है, उन्होंने इनके दिमाग में बात थी पहले से ही कि अपने जो डिवाइसेस है वो उन्होंने जो मेटावर्स में जो लॉन्च किए थे, तो उसमें उनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा, पर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको और उनको लॉसेस थोड़ा बेयर करने पड़े। तो उनको अभी भी होप्स है कि आने वाले दिनों में उनकी डिवाइसेस और भी ज़्यादा हो पाएंगे और उससे रेवेन्यू वो जनरेट कर पाएंगे। जी, तो देखा जाए तो शुरुआत से 2021 में फेसबुक ने रीब्रांड किया एज मेटा, तो तब से मेटावर्स पे वो फोकस कर रहे हैं। तो एक के बाद एक कुछ अपना होराइजन वर्ल्ड्स को वो बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि मेटा ने शुरू किया तो बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो भी इस रेस में लग गई टू कॉन्कर मेटावर्स बेसिकली। और उसके बाद कभी मार्क ज़करबर्ग अपनी सेल्फी शेयर करते हैं तो उस पर उनका मजाक उड़ाया जाता है कि $10 बिलियन मार्क ज़करबर्ग और $10 बिलियन की सेल्फी। और इसके साथ साथ फिर जितने भी उनके वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स आए, तो ऑक्यूलस आया, ऑक्यूलस प्रो आया, जिसका जो प्राइस था वो लगभग $1500 के आसपास था। तो जैसा आपने कहा कि इससे वो रेवेन्यू चाहते थे, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा था $1500। इट शुड बी कॉम्पिटिटिव प्राइस। बिल्कुल, जो मार्केट में एप्पल है या जितने जो अलग माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने कुछ हेडसेट्स जो ये लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा
प्राइस रेट जो बहुत ज़्यादा था मेटा का, और अब इन्होंने जब इन्हें इससे पहले भी Q3 में भी इन्हें लॉस हुआ और अब फिर से इतना लॉस इन्हें हुआ है, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए ये सेल भी किया है, एक सेल लगा दी है हेडसेट्स पे। Moving on, one of India's biggest retail chains, Reliance Retail, announced that they have started accepting the digital rupee at one of its store lines and plans to extend the rollout to all its businesses. The company said central bank digital currency support is already rolled out at Freshpik, its gourmet store line. In addition, the firm also noted that it would be expanding support for the digital rupee to all of its properties, a move that could push adoption forward for the country's CBDC. V. Subramaniam, an executive at Reliance Retail, pointed out that accepting the central bank digital currency adheres to the firm's vision of offering the power of choice to Indian consumers. The executive also highlighted that the initiative allows the firm to provide an alternative payment option within its stores. तो संदीप जी, यहाँ रिलायंस ने तो शुरुआत कर दी है CBDC को एक्सेप्ट करते हुए, और यूज़र्स को उनका जो स्टोर है वो यूज़र्स को एक चांस दे रहे हैं कि वो ई रुपी से वो पे कर सकते हैं। तो एक QR कोड उन्हें मिलेगा जो भी कंज्यूमर्स होंगे, और वो उसके थ्रू उन्हें पे कर सकते हैं। और मेनली रिलायंस का यही कहना है कि ऐसा वो गवर्नमेंट की जो करेंसी से सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अन्य जो इनके स्टोर्स हैं उसमें भी धीरे धीरे ये लागू कर देंगे। और मेनली ये यूज़र्स को एक ऑप्शन, दो तरह के ऑप्शन देना चाहते हैं कि एक तो उन्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा, और पेमेंट जो है UPI या कैश ट्रांजैक्शन या ई रुपी के ज़रिए भी वो चॉइस के थ्रू पे कर पाएंगे। एडिशनल ऑप्शन उनको मिल गया है। एक तो फियाट जो पहले से यूज़ करते थे, उसके बाद UPI सिस्टम, एक ई रुपी एक सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अभी देखना है कि लोगों में इसका किस तरह से क्रेज होगा। और साथ ही एक अपडेट ये भी है कि उन्होंने पार्टनरशिप भी की है ICICI बैंक से, कोटक महिंद्रा और फिनटेक से भी पार्टनरशिप की है। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 TV। This is me, Vishakha Thakur, signing off. Keep watching 3.2 TV and do like, share and subscribe to our channel.